नमस्ते बच्चों। चैप्टर आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो तुम्हारा सबसे पसंदीदा चैप्टर है। सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला क्यों? क्योंकि खेल तमाशा सर्कस शेर बाघ सब मिलेंगे इस चैप्टर में। और केवल इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में जो खुराफात चलती है, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, that too you will find in this chapter. You will enjoy this, you will get some learning also from this chapter, and the main purpose of reading a story, for you at least, is knowing the words, the sentences, the right pronunciation, the correct pronunciation, okay, and the meaning also. The story is about one incident. One boy is there named Baldev, and what he does, and how he go to a circus, and what the other things happen there. All these things you will read in this chapter. You will enjoy this. Before starting the chapter, a few lines for the writer who has written this beautiful story. The writer's name is Premchand. What is the name? Premchand. And Premchand is known as the king of stories, the king of novels. You know novel and story? Novel you know? हाँ, सुना है ना? तो वैसे ही थोड़ा जानिए भी। नॉवेल जो है आपके लिए कहानी का बड़ा रूप है, कहानी का पापा है ना। पापा क्या, बल्कि ग्रैंडफादर समझ लो। बहुत बड़ा होता है और स्टोरी उसमें लंबी होती है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। लेकिन वो भी एक तरह की स्टोरी है, ठीक है। जैसे फिल्में वगैरह होती है ना, तो उनकी भी तो एक स्टोरी होती है। तो उतनी बड़ी स्टोरी अगर हो, वैसी स्टोरी हो, तो वो एक नॉवेल हो जाएगा, ठीक है। एक उसको हिंदी में कहते हैं उपन्यास, ठीक है। प्रेमचंद कहानियों और उपन्यास के राजा कहे जाते हैं। ही इज द किंग, ठीक है। क्यों? लॉट्स ऑफ स्टोरीज ही हैज रिटन, सो मेनी नॉवेल्स ऑल्सो, बट ओनली नॉट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ स्टोरीज ही हैज रिटन. इट इज बिकॉज प्रेमचंद only numbers, like so many stories he has written. That is not making him famous. What he has written, how he has written, that is the thing. आप कोई काम करते हैं, that doesn't make you famous. Okay? आप उस काम को कैसे करते हैं, क्या करते हैं उस काम को करने में? तो राइटर है प्रेमचंद, और प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो कहानी है ना, अगर यहां पर प्रेमचंद का नाम नहीं लिखा होता तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि दिस स्टोरी इज रिटन बाय प्रेमचंद। बिकॉज प्रेमचंद ये इस तरह की कहानियां लिखने के लिए नहीं जाने जाते हैं। प्रेमचंद इज नोन टू ड्रॉ अ स्केच ऑफ विलेज, द विलेजर्स, द स्ट्रगल दे आर फेसिंग, okay, how the pressure, how they are being tortured by the landlord and the money lender, okay, how their crops are like taken by the money lender and landlord. And a few stories, if you will go to the next classes, in class 10th you will read a story. The first chapter of your book will be Bade Bhai Sahab, and that is not about the farmers and the villagers, but that is a very nice story you will read. And if you want to know the story, if you want right now what the story is, so you can go to YouTube and you just search my channel, go to the playlist, and you can get all the chapters of class 10th also there, whatever I have recorded right now. So after that
you will, if you are interested in Hindi literature, you will read so many stories. Like Budhi Kaki, one story is there. One is Poos Ki Raat. In English, you will read these stories as on a winter's night, Poos Ki Raat. The old Kaki means Budhi Kaki, है ना. इस तरह से आपको ये स्टोरीज आगे चल के मिलेगी. कफन अ ग्रेट स्टोरी या रिप्रेजेंटेड द स्टोरी विच रियली टेल्स who Premchand is. So a very nice and very real stories he has written. Whatever he has seen, whatever the society was that time. Okay, so if you want to know about India, the villages, the people of 100 years back, okay, you just read Premchand. You will get everything. So, but this story, this is written for the kids only, so that is not his signature style. This type of story I have already told that this type of story Premchand normally he doesn't write. Okay, लेकिन ये है कहानी और आपको पढ़नी है. हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद को थोड़ा सा जाने, आगे चल करके और अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से जानेंगे. तो कहानी हो गई, कहानी के राइटर भी हो गए. अब हम आ जाते हैं स्टोरी पर. कहानी शुरू होती है. क्या कहानी है? पहली ही लाइन, एक लड़का है बलदेव, वो कहता है मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे. जरूर, जरूर मीन्स होता है, जरूर मीन्स फॉर श्योर. जैसे अब ये शब्द है जरूर. पहले तो पढ़ना बड़ा जरूरी है, ठीक है. जब र पर बड़ा उ की मात्रा, व्हेन आई हैव टेकन क्लास फॉर reading and writing, how the words will be written, how you will pronounce the words, I have told you that this bada u, how it will be pronounced, J A J R double O ru and then R. When I have told you that ra, when matras will be used for ra, then the matras will be like this, for ra only. The bada u and chota u matra is not like this. This is ra and this is ru and ru. This is not done. Okay. So how we write? ra पर बड़ा u की मात्रा और वो बड़ा u की मात्रा लगती है ऐसे. तो प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ क्लियर कर लीजिए. ये है जरूर. मैं तो जरूर जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे. I will go for sure. Somebody will allow me or not. कौन है somebody? ये somebody कौन है? जो छुट्टी देने वाला है. कौन छुट्टी देने वाला है? They are in the school. और वहां पे छुट्टी देने वाला है हेडमास्टर. ठीक है. तो बलदेव कह रहा है, अब इन दिस लाइन हेडमास्टर वर्ड इज हिडन, मीन्स चाहे हेडमास्टर सर मुझे छुट्टी दें या न दें. ठीक है. कोई का मतलब एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू अलाउ हिम. हु विल अलाउ? द हेडमास्टर. ठीक है. बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है. अब सर्कस क्या है? आपने सर्कस देखा है कभी या नहीं? है? देखा है? जब से मोबाइल फोन की क्रांति आई है, जब से मोबाइल फोन्स आ गए हैं, तब से आप ये मानिए कि ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं. सर्कस और इतनी छोटी छोटी इतनी ढेर सारी चीजें हमने अपने बचपन में देखी हैं. आपने सिर्फ मोबाइल फोन देखे हैं, सिर्फ टेलीविजन और मोबाइल फोन. इससे बाहर आपकी दुनिया नहीं है. हमारे टाइम में बाहर की दुनिया, क्योंकि मोबाइल फोन्स नहीं थे, है ना. आप अमेरिकन गॉट टैलेंट फोन पर देखते हैं. हमने इंडियाज गॉट टैलेंट रियल देखा है, लाइव देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है. ये जो सर्कस थे ना, ये इंडियन गॉट टैलेंट ही तो था. क्या हुआ सर्कस में? क्या होता था? एक पार्टी आती थी, मतलब
2-3 ट्रक्स में सामान भर के ढेर सारे लोग आते थे, 50-60 पीपल आते थे, सो मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड सो मच थिंग्स ना, फर्नीचर एंड ऑल द टेंट, वो ला करके एक बड़े से मैदान में बड़ा सा टेंट लगाते थे, है ना, और उसके अंदर फिर वो अपना दिखाते थे कि हाउ परफॉर्मेंस दे विल लाइक दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस दे आर गोइंग टू शो। बहुत सारी चीज़ें होती थी उसमें, है ना। उसमें इंसानों के भी करतब होते थे, जानवरों के भी होते थे, ठीक है। हाथी है, चीता है, शेर है, कुत्ते हैं, बर्ड्स हैं, वे डिफरेंट टाइप के काम कर रहे हैं, जो काम करते हुए आप नहीं देखे हैं, है ना। अब तोते को साइकिल चलाते हुए तो आप नहीं देखे होंगे, बट दिस यू विल सी इन द सर्कस, है ना। हाथी को क्रिकेट खेलता हुआ आपने नहीं देखा होगा, बट यू कैन सी एन एलिफेंट प्लेइंग क्रिकेट इन द सर्कस, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ जैसे सर्कस दिखाया जाता था तो लोग जाते थे, 3 घंटे के, 2.5 घंटे के, 2-3 शो, 300 दिन में चलते थे। इन माई चाइल्डहुड आई हैव सीन 2-3 times, and even when I was in college, then that time also I have watched 2 times circus. In our time, Gemini circus was very famous in my childhood. तो हम लोग जाते थे, और on that time outing and watching movie or watching circus was a big deal. आजकल शहरों में लोग मतलब like every weekend or twice in a week they can plan the outing, but in that time it was not possible, so once in a year or twice in a year was more than enough. हाँ, तो लोग जाते थे और देखते थे। बाद में धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती गई और एनिमल्स पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि उनको नहीं ले आना है, लाइक लायंस एंड टाइगर्स एंड ऑल, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, उन पर सरकार ने रोक लगा दी। तो फिर ये बात थोड़ी ऐसी हो गई कि भाई नहीं ला सकते जानवरों को, और लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म होता गया। हर कोई मोबाइल फ़ोन्स में ऐसा बिजी हो गया कि लोग जो रियल सर्कस है, जो रियल टैलेंट है, उसको लोग देख ही नहीं रहे हैं। तो इस चक्कर में भी धीरे धीरे सर्कस बंद हो गए, अब तो नहीं दिखते हैं। तो उसमें इस तरह से हाथी आपको दिखेंगे कमाल दिखाते हुए, भालू दिखेगा साइकिल चलाते हुए, फुटबॉल खेलते हुए हाथी दिखेगा, और बॉयज़ एंड गर्ल्स उसमें बहुत सारे हैं, वो भी बहुत सारे, जैसे 5-10 साइकिल्स दे विल ड्राइव टुगेदर, और सो मेनी टाइप ऑफ थिंग्स दे विल शो। तो ये सारी चीज़ें होती थी, बट जो मतलब आप अगर सर्कस नहीं देखे हैं तो ये चीज़ें मैं केवल आपको दिखा ही सकता हूँ, अगर बता सकता हूँ, रियल में वो चीज़ आप फील नहीं कर सकते, क्या उसका वास्तविक आनंद है, क्या मज़ा है। अब एक जो है सर्कस लगा हुआ है और एक लड़की इस एंड से कूद करके और हवा में ऐसे पलटते हुए दूसरे एंड पे जाके दूसरे इंसान द्वारा कैच कर ली जाती, सम अदर पीपल इज जस्ट कैचिंग, और पूरा वो हवा में है, झूल रही है ना। हम और आप तो नहीं कर सकते वैसा। तो वो लोग एकदम दांतों तले उंगली दबा करके, मतलब बहुत बड़ी बड़ी आंखें खोले हुए, एकदम शॉकिंग, एकदम सरप्राइज होकर के उन चीज़ों को देखा करते थे। आज भी आप जो डांस के बहुत सारे स्टेप्स आ गए हैं, आप DID वगैरह देखते होंगे, हैं कौन कौन से रियलिटी शोज आते हैं, उनमें भी आप देखे होंगे बड़े सारे करतब दिखाते हैं डांस करने में। उस टाइप के करतब वहाँ पे भी दिखाए जाते थे कभी। तो कह रहा है कि अब सबको सर्कस चलने के लिए बलदेव सलाह दे रहा है। बात यह थी, सलाह मतलब एडवाइस, सजेशन, एडवाइस, कंसल्टेशन, कुछ भी, लेकिन यहाँ एडवाइस समझ लो। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। सलाह इसलिए दे रहा है तुम भी चलो, नहीं तो अकेले हम जाएंगे तो मर जाएंगे ना। मतलब इफ आई विल गो अलोन देन टीचर भी डांट सकते हैं, थोड़ा साथ रहेंगे तो बातचीत भी करेंगे, खुश भी रहेंगे, और डांट भी कम पड़ेगी, लाइक दैट, सेफ्टी भी रहेगी ना। लेकिन और कोई जा नहीं रहा है,
सबको डर है ना। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। मैंने आपको बताया सर्कस पार्टी का आना मतलब क्या, सर्कस पार्टी आई हुई थी मतलब वो पूरी टीम आई थी, एक आदमी नहीं सर्कस दिखाता है। वैसे एक और सर्कस होता है, हालांकि वो सर्कस नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है 2-3 पीपल होते हैं, ठीक है, और वो अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर के और पैदल ही ऐसे गांव गांव में घूम करके और वो दिखाते हैं अपना टैलेंट और कुछ पैसे मांगते हैं। अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए। पैसा तो चाहिए ना, खाने पीने के लिए, रहने के लिए। तो मैंने अपने स्कूल टाइम में भी देखा है, एक औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, उनको लेकर के वो घूम रही है, और जो बच्ची है वो 7-8 ईयर्स की होगी, वो डिफरेंट टाइप के अपने करतब दिखा रही है। बॉटल एक है उसके ऊपर खड़ी हो जा रही है, अपनी आईज की आईलिड से एक निडल है, उस निडल को वो उठा ले रही है ना। तो इस तरह के काम, इस तरह के करतब वहाँ पर दिखाए जाते थे, जो इतने मतलब उस टाइम तो बड़े एंटरटेनिंग लगते थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि अपने जीवन के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या क्या मुसीबत लोग उठाते हैं, कैसे कितने कठिन काम उन्हें करने होते हैं। ऐसे आईलेट से एक निडल को उठा लेना है। आप सोचो कि अगर थोड़ा भी मिस हो जाए तो दैट निडल विल बी इन द आईज, इनटू द आईज इट विल बी, मीन्स द वन आई एटलीस्ट विल बी डैमेज्ड, खराब हो जाएगी एक आंख, आप एक आंख से देख नहीं पाएंगे, और कितनी मुश्किल होगी, कितना दर्द होगा और क्या होगा वो आप छोड़ दीजिए। तो वो भी एक तरह का सर्कस था। यहाँ पार्टी आई हुई है जो मैंने आपको बताया, टेंट वगैरह वाली, स्कूल के पास में ही। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। वन वर्ड इज विज्ञापन। जब कभी मैं आपको शब्द बता रहा हूं तो आप उनका ध्यान रखिएगा। एक शब्द है विज्ञापन। इन शब्दों को बताने की भी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आप शायद प्रोनाउंसिएशन में इनके आपको दिक्कत होगी। ये है व पे छोटी की मात्रा हो गया वी, ये ज्ञ है। मैंने आपको बताया हुआ है, अभी क्या बताया आप ध्यान दीजिए। हमने लिखने को तो लिख दिया ये, लेकिन मैंने इस लेटर को पढ़ाते समय आपको बताया हुआ है कि नॉर्मली वी प्रोनाउंस इट एज GYA, ज्ञ, but exact pronunciation is not gya, that is jya, and this should be instead of gy we should use jn, विज्ञापन होता है। लेकिन चूंकि हर कोई विज्ञापन बोल रहा है तो मैं आपको विज्ञापन बोल करके नहीं कंफ्यूज करना चाह रहा हूं, केवल आपको जानकारी दे रहा हूं कि द रियल प्रोनाउंसिएशन विल बी VIJNAAPAN, विज्ञापन, विज्ञापन, बट एवरीबडी प्रोनाउंस एट विज्ञापन, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो टेलिंग यू विज्ञापन, ठीक है ना। विज्ञापन मीन्स एडवर्टीजमेंट, ठीक है। विज्ञापन चिपका दिए गए थे। जब कोई चीज होती है जिसका प्रचार करना होता है तो हम उसके पोस्टर लगाते हैं ना, है ना। तो पोस्टर बनवा करके उसके और लगा देते हैं। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, मोबाइल फोन्स पर आपको सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट दैट टाइम द ओनली वे वाज द अनाउंसमेंट एंड पेस्टिंग द एडवर्टीजमेंट। तो क्या करते थे, अनाउंसमेंट करते थे। कैसे? एक ऑटो रिक्शा लेते थे या नॉर्मल रिक्शा भी कभी कभी, और एक आदमी उस पर माइक लेकर बैठ गया है, आ गया है आपके शहर में बंबई सर्कस आ गया है। अब वो माइक लेकर और घूम करके बोलता था, आज ही आइए, आज रात के 3 शो, मौत का कुआं देखिए, मौत का कुआं। वो प्रचार करता था, वो मतलब एडवर्टीजमेंट का ये भी एक तरीका था, प्रमोशन कर रहा था वो एक तरह से। और घूम घूम करके सबको हर जगह वो बताते थे कि कब से सर्कस कब तक चलेगा, कितने शो चलेंगे, इस तरह से, ताकि लोग जाएं और देखें। और साथ में पोस्टर लगा दिए जाते थे, द ग्रेट जेमिनी सर्कस,
बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर में दिखाया भी गया है कि क्या क्या करतब होंगे। वो उस टाइम अपने ज़माने की एक हमारे लिए एक बड़ी बहुत बड़ी चीज़ थी, बड़ी ललक थी वहाँ जाने की, उसे देखने की। तो विज्ञापन चिपका दिए गए थे और उस विज्ञापन में क्या था, कैसे बैनर बनते हैं, कैसे विज्ञापन बनते हैं, वो भी आप देखिए। और उस विज्ञापन में सर्कस का नाम और कब से कब शो टाइमिंग एंड ऑल एवरीथिंग विल बी गिवन। तो अब जैसे द ग्रेट बॉम्बे सर्कस, जेमिनी सर्कस, जमुना सर्कस, कौन कौन से सर्कस थे, तो उनके एडवर्टीजमेंट चिपका दिए जाते थे दीवारों पर। और दीवारों पर उन दिनों आज की तरह से बैनर थे भी नहीं, उस तरह से वो कागज पर और प्रेस प्रिंटिंग होती थी, बड़े अजीब से होते थे। तो खैर इस तरह के बैनर बनाए जाते थे और दीवारों पर चिपका दिए जाते थे। क्या था उसमें, सारी डिटेल और सारा लिख करके उसमें क्या चीजें थी। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। तरह तरह के जंगली जानवर, डिफरेंट टाइप के वाइल्ड एनिमल्स, जंगली मीन्स वाइल्ड, जंगली जानवर तरह तरह के काम करते हुए दिखाए गए थे। अब कौन से किस टाइप का काम, अजीब अजीब काम। अजीब मतलब होता है जो सामान्य न हो, है ना, जो कुछ आप देख रहे हैं वो नॉर्मल है, लेकिन उससे डिफरेंट अगर कोई चीज है तो वो अजीब है, ठीक है, वियर्ड, ऑड, दिस इज नॉट लाइक नॉर्मल, ओके। अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। मैंने आपको अभी बताया कि शेर सर्कस में टेबल पर बैठ करके डांस कर रहा है, खड़े होकर के डांस कर रहा है, या भालू डांस कर रहा है, या हाथी क्रिकेट खेल रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये अजीब है। मतलब ऐसा आपने तो नहीं देखा होगा कभी किसी हाथी को कूदते हुए, अगर सर्कस में नहीं देख रहे हैं तो अजीब अजीब काम करते हुए दिखाए गए थे पोस्टर पे। अब पोस्टर देख करके ही बहुत सारी फिल्में बन जाती हैं, मतलब आपके मन में। तो पहला तमाशा, तमाशा मीन्स शो, पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, है ना। फर्स्ट शो नाइट में शुरू होने वाला था। क्या था फर्स्ट शो, अब वही सर्कस दिखाया जाएगा सब कुछ उसमें। रात को शुरू होने वाला था, मगर विलन की एंट्री, है ना। ऐसा थोड़ा ही है कि सर्कस लग गया और आप जाके देखाओ, ऐसे देखाओ तो फिर लाइफ इतनी सिंपल थोड़ी होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी तो होते हैं। तो हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। मना कर देना यानी डिनाई कर देना, किसी चीज के की परमिशन देने से स्टॉप कर देना, किसी को रोक देना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया था, हेडमास्टर ने मना कर दिया था कि आपको सर्कस देखने नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन एक तरफ प्रिंसिपल मना कर और दूसरी तरफ जो उसका एडवर्टीजमेंट है वो इतना अट्रैक्टिव है, इश्तेहार बड़ा आकर्षक था, एडवर्टीजमेंट इतना अट्रैक्टिव था कि देख करके लोग उसको जाने की सोच रहे हैं। क्या है एडवर्टीजमेंट में, आ गया है, आ गया है ना, उस पर लिखा हुआ है आ गया है। जिस तमाशे का आप भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे वही बंबई सर्कस आ गया। फॉर द शो यूर वेटिंग, भूख प्यास छोड़कर, भूख मने हंगर, प्यास मने थर्स्ट। तो ऐसा सर्कस जिसके लिए आप अपना खाना पीना भी छोड़ दिए थे, मतलब यू आर वेटिंग फॉर दैट दिस सर्कस, है ना। वो भी वेट कौन सा, है ना, बहुत ज्यादा जिसका वेट किया जा रहा था, है ना। तो ऐसा सर्कस, अब ऐसा इसका मतलब नहीं सच में खाना पीना छोड़ देना, है ना। अगर आप वास्तव में किसी चीज को पाने के लिए खाना पीना छोड़ दे रहे हो तो कितनी बड़ी चीज होगी ना। इसीलिए कहा गया है कि खाना पीना छोड़कर जिसका इंतजार कर रहे थे वही सर्कस आ गया है, ठीक है। कौन सा, बंबई सर्कस। बंबई यानी मुंबई, आज का मुंबई, पहले उसे बंबई कहते थे, है ना, नाम बदल गया बाद में, बहुत सारी जगहों के नाम बदले। मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, है ना, बेंगलोर का बेंगलुरु हो गया, है ना। तो इसी तरह से मतलब पर्टिकुलर उस एक्सेंट में उन शहरों के नाम रख दिए गए जिस भाषा
को बोलने वाले लोग वहां रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बंबई, बंबई से हो गया मुंबई। तो वो बॉम्बे सर्कस था, द ग्रेट बॉम्बे सर्कस, वो आ गया है, ऐसा दिखता था वो, द ग्रेट बॉम्बे सर्कस, ठीक है।